بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں اور یہ کہاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کب نکالے گا اور جب یہ زمین پر آئیں گے تو کیا ہوگا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمیں اکثر سننے کو ملتا رہتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی حقیقت نہیں جانتے کہ آخر یاجوج ماجوج کیا ہے۔ اس ٹاپک پر ڈیٹیل سے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے، اسی لیے آپ سبھی لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، یاجوج ماجوج کون ہیں، ان کی ڈیٹیل بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہیں جس کو حضرت ذوالقرنین نے شیشے کی دیوار بنا کر انسانی آبادی سے الگ جگہ پر قید کر دیا، کیونکہ یہ ایک ایسی خطرناک مخلوق ہے کہ جب یہ اس دنیا میں نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی، کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑے گی، نہ انسان، نہ جانور، نہ پرندے، نہ پیڑ پودے، کیڑے مکوڑے، کوئی بھی چیز نہیں بچے گی، یہ سب کو کھا جائے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد پوری دنیا ایک چٹیل میدان کی طرح سنسان اور ویران نظر آئے گی۔ یہ مخلوق اتنی خطرناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود بھی ان کی بھوک نہیں مٹے گی۔ اس دنیا کی ساری چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو بھی کھانے کے بارے میں سوچے گی۔ میرے پیارے ناظرین، اس طرح کی خطرناک مخلوق کے بارے میں آپ نے قصے کہانیاں تو بہت سنی ہوگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں بھی کوئی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جو وہ اتنی خطرناک ہو کہ اس پوری دنیا میں رہنے والی ہر چیز کو کھا جائیں؟ اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی خطرناک مخلوق کے بارے میں جو حقیقت میں پائی جاتی ہے اور اس کا وجود بھی ہے، اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مخلوق ہماری اسی دنیا کے اندر موجود ہیں اور قید ہیں۔ میرے ناظرین، جس مخلوق کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں یہ قیامت کی بڑی نشانیاں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مخلوق کون سی ہے اور یہ مخلوق کہاں پر قید ہیں، اور جب یہ مخلوق قید سے آزاد ہو کر نکلے گی تو دنیا کے اندر کس طرح تباہی مچائے گی، اس مخلوق کی شکل اور صورت کیسی ہوگی، اور یہ لوگ تعداد میں کتنے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطرناک مخلوق کو کیوں قید کر رکھا ہے۔ میرے ناظرین، ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، یہ دنیا جس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے، اصل میں یہ دنیا اپنے ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے اور وہ وقت بہت نزدیک ہے جب دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنہ فساد ظاہر ہوں گے اور آخر کار اس خوبصورت دنیا کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کو برباد کرنے کے پیچھے اس قوم کا بھی ہاتھ ہوگا جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج ایک ایسی فوج ہیں جس کے بارے میں ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ پوری فوج کہاں پر قید ہے اور یہ فوج کب آزاد ہوگی، اور اس خونی فوج کی تعداد کتنی ہے اور اس فوج کے لوگ کتنے خونخوار ہیں، اور جب یہ دنیا میں نکلیں گے تو کس طرح پوری دنیا میں تباہی اور بربادی پھیلائیں گے۔ میرے ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو قیامت کے نزدیک ظاہر ہوگی اور یہ مخلوق دنیا کو ختم کر دے گی۔ یہ قوم پوری دنیا کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی، اس بات کا اندازہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگائیے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائیں۔ اس بیچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک لال ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ ہلاک ہو گئے۔ عرب والے اس فتنے کی وجہ سے جو بہت نزدیک آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی گول
बनाकर इशारा किया कि आज याजूज माजूज कौम की दीवार इतनी खुल चुकी है। मेरे नाज़रीन, याजूज माजूज कौम की हकीकत क्या है, ये कौन लोग होंगे और किसकी नस्ल में से होंगे? इसके बारे में रिवायत में आता है कि याजूज और माजूज दो मर्द हैं जो हज़रत याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इन्हें याजूज माजूज का इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी और इनके जिस्म बहुत मजबूत होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अगर क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों के 10 हिस्से किए जाएंगे तो उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज कौम के होंगे और एक हिस्से में सारी मखलूक होगी। इस रिवायत से ये अच्छी तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन लोगों की तादाद कितनी ज़्यादा होगी। मेरे नाज़रीन, अब बात करते हैं कि याजूज माजूज कौम कैसी होगी, इनकी शक्ल सूरत और इनका जिस्म कैसा होगा। इसके बारे में रिवायत में आता है कि याजूज कौम के एक ग्रुप वाले बहुत लंबे होंगे जो सांप, बिच्छू और ज़मीन के कीड़े मकोड़े खाते होंगे। याजूज माजूज कौम की नस्ल एक साल में जितना बढ़ती है इतना कोई भी मखलूक नहीं बढ़ती। ये कौम एक दूसरे को कबूतरों की तरह बुलाती है और कुत्तों की तरह बोलती है। इस खतरनाक मखलूक में से कुछ लोगों के सींग, पूंछ और लंबे लंबे दांत होंगे जो कच्चा गोश्त खाते होंगे। मेरे नाज़रीन, याजूज मखलूक के 40 ग्रुप हैं जिनकी शक्ल सूरत एक दूसरे से नहीं मिलती। इन 40 ग्रुप में से हर ग्रुप का बादशाह और भाषाएं अलग अलग हैं। इन लोगों का ज़्यादातर खाना पीना शिकार से होता है और ये कौम इतनी ख़तरनाक कौम है कि भूख लगने पर एक दूसरे को भी खा जाती है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि याजूज एक ग्रुप है और माजूज 4 ग्रुप हैं और इसके हर ग्रुप की तादाद 4 लाख है और इस कौम का हर वो शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक 1000 बच्चे पैदा ना कर ले। याजूज माजूज कौम में से एक ग्रुप ऐसा है जो लगभग 12-12 फुट लंबा और 121 फुट चौड़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि याजूज माजूज कौम का एक ग्रुप ऐसा भी है जिनकी लंबाई सिर्फ 1 बालिस्त है और उनके पंजे परिंदों जैसे हैं और दांत परिंदों जैसे हैं। उनके बाल लंबे लंबे हैं जो उनको गर्मी और ठंड से बचाते हैं और इनके कान इतने लंबे हैं कि एक कान से गर्मी और दूसरे कान से ठंडी गुजारते हैं। और याजूज माजूज कौम का एक ग्रुप ऐसा भी है जो सोते वक्त अपने एक कान को नीचे बिछा लेता है और दूसरे कान को ओढ़ लेता है। और ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इस कौम का कोई एक भी शख्स मर जाए तो ये कौम खुद ही उसको खा जाती है। हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं कि मेराज की रात अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे याजूज माजूज कौम के पास भेजा। मैंने इस कौम को इस्लाम की तबलीग की लेकिन इस कौम ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और ये कौम दोज़ख लोगों और शैतानों के साथ जहन्नम में जाएगी। मेरे प्यारे नाज़रीन, इस खतरनाक मखलूक को आज से हज़ारों साल पहले हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था और ये कौम आज तक उसी दीवार के पीछे कैद है और क़यामत के करीब अल्लाह ताला उनको आज़ाद करेगा। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज कौम की दीवार के बारे में फरमाया कि याजूज माजूज की कौम रोज़ाना उस दीवार को चाटते हैं, यहाँ तक कि जब वह दीवार खुलने के करीब हो जाती है तो इस कौम का कमांडर अपनी कौम से कहता है कि चलो अब वापस चले, कल इस दीवार को तोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस दीवार को फिर उस तरह बना देता है जिस तरह वह दीवार पहले थी, यहाँ तक कि जब इस कौम का वक्त पूरा हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को लोगों की तरफ भेजने का इरादा फरमाए तो उस वक्त याजूज माजूज कौम का कमांडर अपनी कौम से कहेगा कि वापस लौटो, इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे, यानी वह अपनी बात को इंशाअल्लाह के साथ मिलाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल जब ये लोग उस दीवार के पास दोबारा वापस आएंगे तो इस दीवार को उसी तरह पाएंगे जिस तरह उस दीवार को छोड़कर गए थे, तो वह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस दीवार को तोड़ देंगे और लोगों के बीच निकल आएंगे और ये लोग पूरी ज़मीन का सारा पानी पी जाएंगे और लोग इनसे डरते हुए भागेंगे। याजूज माजूज कौम
उस वक्त निकलेगी जब क़यामत के करीब मुसलमान तुर पहाड़ पर जा चुके होंगे। इन लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब इनका पहला ग्रुप इजराइल में मौजूद बहराए तिबरिया नामी झील, जो 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है, जब ये उसके पास से गुजरेंगे तो उस बहराए तिबरिया झील का सारा पानी पी जाएंगे। और जब इसका दूसरा ग्रुप उसी जगह पर आएगा तो उस जगह पर रुककर ये कहेगा कि यहाँ पर तो कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम पूरी दुनिया में फसाद और बिगाड़ पैदा करेगी और खून बहाना शुरू कर देगी। जब ये लोग पूरी दुनिया में रहने वाले इंसान, जानवर, परिंदे, यहाँ तक कि हर चीज़ को कत्ल कर देंगे और पूरी दुनिया में फसाद फैला चुके होंगे, तो उस वक्त ये लोग कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को कत्ल कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। और ये कहते हुए आसमान की तरफ ये अपने तीरों को फेंकेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से वह तीर खून से लथपथ होकर वापस लौटेंगे। ये कौम उन खून से लथपथ तीरों को देखकर बहुत खुश होगी और समझेगी कि हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। और इस बीच जब ये लोग अपनी अपनी हरकतों में मगन होंगे तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ पहाड़ी पर मौजूद होंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस मखलूक के गलों में खास किस्म का कीड़ा पैदा कर देगा और उस वक्त याजूज माजूज के सारे ग्रुप एकदम से मर जाएंगे। इस कौम के मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ पहाड़ से नीचे उतरेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त ये मंजर देखेंगे कि पूरी ज़मीन इनकी लाशों और बदबू से भरी पड़ी है और पूरी ज़मीन पर 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक बार फिर दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक खास किस्म के परिंदे भेजेगा और परिंदे याजूज माजूज कौम की लाशों को उठाकर जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा वहाँ पर फेंक आएगा। याजूज माजूज कौम के हथियारों को मुसलमान 7 साल तक इस्तेमाल करते रहेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश बरसाएगा और वह बारिश पूरी ज़मीन को बराबर कर देगी। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज कौम को ख़त्म कर देगा और याजूज माजूज क़यामत की सबसे ख़तरनाक निशानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि क़यामत के करीब ज़ाहिर होने वाले बड़े फितनों से हमें बचाए और ईमान की हालत में हमारा ख़ात्मा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमें जीना मरना नसीब फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।